Good morning, student. Myself Chirag Sukani, and I'm going to teach you Advanced Financial Management subject. Now, in last video, we completed the cost of retained earning and the weighted average cost of capital. Now, what is weighted average cost of capital? It is an weighted average cost of the various source of the fund. Okay, and this WACC it is calculated in two way. That is as per the book value weight as well as market value weight. ओके फिर बाद में हम लोग ने पढ़ा दैट इज स्टेटमेंट विच शोज द WACC एज पर द बुक वैल्यू वेट एंड द स्टेटमेंट विच शोज WACC एज पर द मार्केट वैल्यू वेट. नाउ टुडे इन दिस सेशन वी विल स्टार्ट द सम्स दैट इज कैलकुलेशन पार्ट. ओके और जो भी ये सम्स आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो इन एग्जाम 13 to 14 मार्क्स में आता है. सो फर्स्ट सम, as a financial analyst in a large company, you are required to calculate WACC, that is weighted average cost of capital, using book value weight and the market value weight. यानी आपको WACC calculate करना है in both method, that is book value weight and the market value weight. Now, following information is available. Debenture into bracket rupees 100 each and the book value is what 8 lakhs. Preference shares rupees 100 each and the book value is what 2 lakhs. Equity share rupees 10 each and the book value is what 10 lakhs. Now J rupees 100 each, rupees 100 each, rupees 10 each, it is called as what face value. Okay, and a face value of debenture, face value of the preference share and the face value of the equity share. Okay, so face value is given and the book value is given. Clear? Now all securities are traded in the capital market and the current price of each securities are rupees 110, rupees 120 and rupees 22 respectively. That means debenture का market value 110, preference shares का market value 120 and the equity share का market value is what 22 rupees. Now another information are as follow. Rupees 100 face value debenture which is redeemable at par, having 10 years maturity period, 13% coupon rate, 4% flotation cost and the selling price of rupees 100. Now based on that we can calculate the cost of debt, that is KD. Clear? Next, rupees 100 face value of the preference shares redeemable at par, 10 years maturity period, 14% dividend rate, 5% flotation cost and the selling price is what rupees 100. तो ये इंफॉर्मेशन प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में दिया है. सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स. Then equity share is currently selling at rupees 22, flotation cost rupees 2 per share, dividend is expected on the equity share rupees 2 per share and the anticipated growth rate 7% and the corporate tax rate is given 35%. Okay, so based on this information we can calculate the cost of equity. And lastly corporate tax rate is also given. Okay, and the corporate tax it is calculated on cost of debenture. जो फॉर्मूला था ना आपको याद होगा तो that is I into bracket 1 minus T tax rate. So ये consider करना है. So before answering the sum you should carefully read that is whole sum. Okay, आपको पूरा सम्स केयरफुली पढ़ना पड़ेगा. बहुत लेंथी सम्स होता है बट ये आपको क्लियरली पढ़ना पड़ता है. ओके, सो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है उसको कैलकुलेट करना है WACC बेस्ड ऑन बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू वेट. इंफॉर्मेशन इज गिवन, सो पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ के आपको कैलकुलेट करना है. ओके, नाउ कल के वीडियो में हम लोग ने जो पढ़ा है ना WACC, ना उसका मैंने स्टेप्स पढ़ा है आपको, दैट इज स्टेप्स इन द कैलकुलेशन ऑफ द WACC. सो फर्स्ट स्टेप क्या था, दैट इज कैलकुलेट द that is cost of each source of the fund. Okay, then we have to calculate the proportion, then we have to calculate then we have to multiply the proportion with the cost. Okay, and then we can get weighted cost.
टोटल ऑफ दैट वी कैन गेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, तो जैसे आप सम्स करते जाएंगे ना आपको आइडिया आता जाएगा. क्लियर. सो जैसे आप सम्स पढ़ लिया, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ द फंड. ओके, सो फर्स्टली वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ द फंड और उसके सामने आपका सम्स होना चाहिए. ओके, चलो फर्स्ट सम. नाउ कॉस्ट ऑफ ईच सोर्सेस ऑफ द फंड ना. नाउ आप कोई भी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आप पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करो, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर करो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कोई भी करो, आपकी मर्जी. ओके, बट मेरा हैबिट है कि जो इंफॉर्मेशन दिया है तो उसको स्टेप बाय स्टेप कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है. नाउ हियर ऑल सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन द मार्केट और उसका करंट मार्केट प्राइस इज गिवन 110, 120 एंड 22 और ये इंफॉर्मेशन से आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. ओके, सो फर्स्ट केडी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. नाउ केडी का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी प्लस 1/n आरवी माइनस एस पी. ये तो आपको भूलना ही नहीं है, फॉर्मूला तो याद रखना ही है. फॉर्मूला नहीं है तो आप एक स्टेप्स भी आगे नहीं जाओगे. 1/2 आरवी प्लस एस पी. ओके, हम लोग ने आगे जो वीडियो था ना, हम लोग ने आगे सब भी कैलकुलेट कर लिया है इंडिविजुअल कॉस्ट. ओके, सो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में आपको आई चाहिए, टी चाहिए, नंबर ऑफ इयर्स चाहिए, रिडीमेबल वैल्यू चाहिए, नेट सेल प्रोसीड दैट इज एस पी चाहिए, वगैरह वगैरह. क्लियर. ना सम्स में क्या दिया, ₹100 फेस वैल्यू डिबेंचर. ओके, सो आप यहाँ पे लिख लो सब. मैंने आपको बोला था कि फेस वैल्यू 100 रुपीज इज गिवन. देन रिडीमेबल एट पार यानी आरवी, आरवी क्या मिलेगा, रिडीमेबल एट पार यानी आरवी एट फेस वैल्यू से होगा. सो रिडीमेबल वैल्यू भी क्या हो जाएगा 100. हैविंग 10 years मैच्योरिटी पीरियड यानी एन 10 years. 13% coupon rate. Coupon rate is what? I. 13%. Clear? Then 4% is flotation cost. So flotation cost is given 4%. And the selling price and a net sale proceed that is SP is given. SP is what? ₹100. ओके, तो ये सब आपको इंफॉर्मेशन दे दिया. सो ये सम्स में आपको आई चाहिए और आपको पता है आई इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. ओके, सो आई इंटरेस्ट रेट 13% एंड द फेस वैल्यू इज व्हाट 100. सो आई क्या बन जाएगा 13 रुपीज. क्लियर. टैक्स रेट लास्ट में दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 35%. क्लियर. आरवी इज व्हाट, रिडीमेबल वैल्यू 100 एंड द एसपी. नाउ आपको ऑलवेज याद रखना है कि सेलिंग प्राइस पे फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, माइनस होता है ना. सो एसपी क्या मिलेगा आपको, नेट सेल प्रोसीड एसपी क्या बनेगा 100 माइनस 4% फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है. सेलिंग प्राइस पे नेट सेल प्रोसीड, आपको सेलिंग प्राइस दिया है ना, सेलिंग प्राइस 100 दे दिया. सो नेट सेल प्रोसीड आपको कैसे मिलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस 4% फ्लोटेशन कॉस्ट. ओके ना, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 100 ना, सो 4 रुपीस आएगा. सो अभी आपका एसपी क्या बन जाएगा 96. आ रहा है समझ में. अभी आपको फॉर्मूले में डालना है, जो मैंने आपको फॉर्मूला आगे पहले ही लिख लिया. सो के डी इज व्हाट, आई, आई कितना बनेगा 13 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट 0.35. क्लियर. प्लस 1/n, n कितना है 10. आरवी रिडीमेबल वैल्यू 100 माइनस एसपी 96 डिवाइडेड बाय 1/2. आरवी इज व्हाट 100 प्लस एसपी 96. सो 13 का 13, 1 माइनस 0.35 यानी 0.65 प्लस 1/10 इंटू ब्रैकेट 100 माइनस 96 4 आएगा. क्लियर. डिवाइडेड बाय 1/2. 100 प्लस 96 यानी 196. नाउ 13 इंटू 0.65. ओके, नाउ 13.0.65 करेंगे. सो आपका आंसर आएगा
8.45 प्लस 1/10 इंटू 4 या 4/10 सेम ही होगा, दैट इज 0.4 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 196 दैट इज 98. क्लियर? सो दो को ऐड करेंगे, सो 8.85 डिवाइडेड बाय 98. सो आपका आंसर क्या आएगा? 0.0903. एंड रिमेंबर पॉइंट के बाद 4 डिजिट आपको यूज करना है. सो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या आ गया? 0.0903. क्लियर? ना उसको आप परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट नो नीड इन केस ऑफ WACC. क्लियर? चलो, KD के बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का इंफॉर्मेशन दिया है. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का इंफॉर्मेशन दिया है. नाउ KP का फॉर्मूला आपको याद है ना? दैट इज DP इंटू ब्रैकेट 1 प्लस DT डिविडेंड टैक्स रेट प्लस 1/n RV माइनस SP अपॉन 1/2 RV प्लस SP. नाउ ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है बिकॉज सम्स में क्लियरली मेंशन किया है कि ₹100 फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल एट पार. क्लियर? सो 100 इज व्हाट? फेस वैल्यू. सो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना दिया है? 100. रिडीमेबल एट पार. एट पार यानी RV क्या बनेगा? फेस वैल्यू दैट इज 100 ही बन जाएगा. 10 years मेच्योरिटी पीरियड यानी N इज व्हाट? 10 years. 14% is dividend rate यानी DP dividend preference dividend that is 14%. Then flotation cost 5%. Okay, and the selling price SP 100 rupees is given. Clear? Now मैंने आपको बोला है कि नेट सेल प्रोसीड कैसे मिलता है, and that is SP 100 minus flotation cost that is 5%. सो 100 का 100 माइनस 5% ऑफ 100, सो 5 हो जाएगा. सो SP क्या बन जाएगा? 96. नाउ प्रेफरेंस डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. सो 14% ऑफ 100, सो DP भी क्या बन जाएगा? 14 रुपीज. नाउ यहाँ पे DT डिविडेंड टैक्स रेट सम्स में दिया ही नहीं है. भले हम लोग ने यहाँ पे फॉर्मूले में डाला, बट 1 प्लस DT नहीं दिया है, सो डिविडेंड टैक्स रेट आप कंसिडर नहीं करोगे. क्लियर? RV तो पार से हुआ. सो प्रेफरेंस डिविडेंड, सो KP का फॉर्मूला क्या है? DP क्या हुआ? 14 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस DT. सो डिविडेंड टैक्स रेट इज नॉट गिवन, तो ये पूरा पोर्शन ही निकल जाएगा. सो नो नीड टू राइट. प्लस 1/n. n कितना है? 10. RV 100 माइनस SP 90, सॉरी यहाँ पे 95 आएगा. 95 divided by 1/2 100 plus 95. So 14 का 14 plus 1/10 100 minus 95 5 divided by 1/2 100 plus 95 195. Clear? So 14 का 14 plus 1/10 into 5 that is 0.5 divided by 1/2 into 195 that is 97.5. Clear? So answer is what? 14.5 divided by 97.5. So 0.1487. So point के बाद 4 डिजिट. सो आप उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 14.87 क्या आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. क्लियर? सो KD KP मिल गया. फिर बाद में आपको क्या मिलेगा? KE इक्विटी शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. उसका सिंपल सा फॉर्मूला था, मैंने आपको बोला था D1 अपॉन PO प्लस G. याद रखना था. D1 इज व्हाट? एक्सपेक्टेड डिविडेंड. PO यानी सेलिंग प्राइस एंड G यानी ग्रोथ रेट. चलो पढ़ो कि इक्विटी शेयर इज करंटली सेलिंग एट 22, यानी आपको यहाँ पे प्राइस ऑफ द शेयर दे दिया 22. फ्लोटेशन कॉस्ट ₹2 पर शेयर. फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज नहीं दिया बट ₹2 दे दिया. ओके, देन डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड ऑन इक्विटी शेयर ₹2 पर शेयर. एक्सपेक्टेड वर्ड यानी D1. ओके, लास्ट ईयर यानी D0.
ओके, सो एक्सपेक्टेड यानी D1 डायरेक्टली दे दिया कितना 2 रुपीज। देन ग्रोथ रेट 7% दिया है, आप सम्स में देखते जाना 7% ग्रोथ रेट दिया है। सो हर एक इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। अभी आपको ऑलवेज मतलब याद रखना है कि नेट सेलिंग दैट इज नेट सेल प्राइस में कैसे मिलता है, आपका फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना है। सो पीओ क्या बन जाएगा 22 माइनस 2 रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, सो 20 रुपीज आपका पीओ बनेगा। सो D1 इज व्हाट ₹2, P0 20 प्लस ग्रोथ रेट इज व्हाट 7% यानी 0.07। नाउ 2 divided by 20, okay, 2 divided by 20 is what 0.1 plus 0.07, so आपका आंसर आएगा 0.17। ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज 0.17। क्लियर? सो आपका फर्स्ट स्टेप्स ओवर, ये मेन है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द इंडिविजुअल कॉस्ट दैट इज ईच सोर्स ऑफ द फंड। सो सम्स में 3 सोर्स दिया था, विच आर दे, दैट इज डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड द इक्विटी। ओके, तो यहाँ पे 3 सोर्स दिया है, तो 3 कॉस्ट हम लोग ने कैलकुलेट किया, दैट इज KD, KP एंड द KE। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे WACC कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो WACC बेस्ड ऑन बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू। सो WACC एज पर बुक वैल्यू वेट। ओके, मैंने आपको जो नोट्स भेजा उसमें पूरा टेबल मैंने आपको भेज दिया, बट यहाँ पे आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। ओके, सो फर्स्ट कॉलम में आपका लिखोगे सोर्सेस। क्लियर? सोर्सेस के बाद क्या होगा अमाउंट। ओके, अमाउंट के बाद हम लोग ने प्रपोर्शन, ये शॉर्टकट वाला एक एक वर्ड वाला प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के बाद कॉस्ट, एंड कॉस्ट के बाद वेटेड कॉस्ट। क्लियर? तो सोर्स कितना है डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर। सो डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर डाल दिया। नाउ WACC as per book value weight. Now book value weight represent the values as per the balance sheet, यानी जो वैल्यूज दिया है ना वही आपको ले लेना है। सो डिबेंचर का वैल्यूज कितना है 8 lakhs, प्रेफरेंसेस का वैल्यू 2 lakh एंड द इक्विटी शेयर का वैल्यू 10 lakhs। सो टोटल ऑफ ईच सोर्स, टोटल ऑफ ईच सोर्स क्या होगा 8 + 2 + 10 दैट इज 20 lakhs। सो 20 lakhs आपका क्या हो गया टोटल। अभी प्रपोर्शन कैसे निकलेगा, दैट इज 8 lakhs डिवाइडेड बाय 20 lakhs करना पड़ेगा आपको प्रपोर्शन। ओके, एंड प्रपोर्शन ऑलवेज क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्लियर? सो प्रपोर्शन कैसे निकलता है 8 lakhs डिवाइडेड बाय 20 lakhs। सो डिबेंचर का 0.40 यानी 40 उसका वेटेज है 40%। देन 2 lakhs डिवाइडेड बाय 20 lakhs। ओके, तो 0.10 यानी 10% प्रेफरेंस शेयर्स का वेटेज है। ओके, एंड 10 lakhs डिवाइडेड बाय 20 lakhs। सो इक्विटी शेयर का वेटेज कितना है 50%। ओके, तो टोटल क्या आएगा 1। क्लियर? अभी कॉस्ट क्या डालना है जो हम लोग ने कैलकुलेट किया, दैट इज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। सो डिबेंचर का कॉस्ट कितना आया, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो हम लोग ने कैलकुलेट किया दैट इज 0.0903, 0.0903। प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट कितना आया KP 0.1487, 0.1487 एंड द इक्विटी शेयर का 0.70। आया समझ में? अभी वेटेड कॉस्ट कैसे मिलता है प्रपोर्शन इनटू कॉस्ट, यानी 0.40 इंटू 0.0903 दैट इज 0.03612। ओके,
0.4 into 0.0903, that is 0.03612. Then 0.10 into 0.1487, that is 0.01487. Clear? And 0.50 into 0.17, that is 0.0850. सो टोटल क्या आएगा आपका 0.13599. सो weight WACC as per book value is what? 0.13599 into 100. परसेंटेज में निकालना है ना, सो 13.599%, और वी कैन से 13.60%. कन्वर्ट कर 2 डिजिट की बात करोगे ना तो कन्वर्ट हो जाएगा, सो 13.60%. क्लियर? सो हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया? WACC एज पर बुक वैल्यू वेट. नाउ सेकंड, WACC एज पर द मार्केट वैल्यू वेट. WACC एज पर मार्केट वैल्यू वेट. ओके ना, मार्केट वैल्यू वेट यानी वैल्यूज एज पर द मार्केट कोटेशन. ओके, तो यहाँ पे तो टेबल तो सेम ही था, फॉर्मेट, सोर्सेस, then amount, then proportion, then cost, and then weighted cost. सोर्स भी सेम ही था, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर था ना. अभी यहाँ पे आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा, बिकॉज आपका मार्केट वैल्यू वेट फाइंड आउट करना है. सो मार्केट वैल्यू वेट के लिए फॉर्मूला था, हम लोग ने पढ़ा है आगे में. सो मार्केट वैल्यू वेट कैसे मिलता है? मार्केट वैल्यू वेट फॉर द इक्विटी शेयर इज व्हाट? मार्केट वैल्यू वेट फॉर द इक्विटी शेयर इज करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. Then market value of the preference shares and current market price of preference shares into number of preference shares and the current market price of debenture into number of debenture. Okay, so firstly हम लोग को values find out करना है, that is market value weight. Okay, so debenture है, so हम लोग find out करते हैं working notes में market value weight of debenture. Okay, so इसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर. नंबर ऑफ डिबेंचर है ना. नाउ करंट मार्केट प्राइस सम्स में दे दिया है, and all securities are traded in the capital market and the current price of each security is what? 110, 120 and 22 respectively. यानी डिबेंचर का 110 है प्राइस, इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर. अभी आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर क्लियरली नहीं दिया है. ओके, सो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट करेंगे. सो नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू बुक वैल्यू अपॉन फेस वैल्यू. उसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे मिलता है? बुक वैल्यू अपॉन फेस वैल्यू. सो बुक वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितना है? 8 lakhs है ना, एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज व्हाट? 100. सो नंबर ऑफ डिबेंचर कितना हो जाएगा? 8000 डिबेंचर. ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर 8000. सो मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर क्या आ जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,80,000. क्लियर? सो हम लोग यहाँ पे डिबेंचर में डाल देंगे 8,80,000. लाइक वाइज सेकंड, मार्केट वैल्यू वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. क्लियर? सो उसका फॉर्मूला क्या होगा? करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. क्लियर? नाउ करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना है? 120 प्रेफरेंस शेयर्स रिस्पेक्टिवली ना, तो 120. सो 120 उसका करंट मार्केट प्राइस है, इनटू नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नॉट गिवन. सो हम लोग को अगेन फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. सो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला बुक वैल्यू अपॉन फेस वैल्यू. नाउ प्रेफरेंस शेयर्स का बुक वैल्यू कितना है? 2 lakhs.
Okay, and the face value is what? 100. Clear? So 2000 preference shares आपका आएगा. So यहाँ पे number of preference share is what? 2000. So 12 2 that is 2,40,000 आएगा. Clear? So यहाँ पे डाल देंगे 2,40,000. Clear? अभी थर्ड क्या बचा? Equity. That is market value weight of इक्विटी शेयर. तो मैं यहाँ पे अगेन नहीं फॉर्मूला डाल रहा हूँ. दैट इज करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इनटू नंबर ऑफ इक्विटी. सो करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? 22 रुपीज है. इनटू नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना. बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, दैट इज 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10. सो कितना आएगा? 1 lakh इक्विटी शेयर. सो 22 lakhs आपका मार्केट वैल्यू वेट आएगा ऑफ इक्विटी शेयर. ओके, सो इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू कितना होगा? 22 lakhs. उसका टोटल करेंगे, टोटल सो आएगा 33,20,000. 33,20,000. अभी प्रपोर्शन निकालना है. दैट मीन्स 8,80,000 डिवाइडेड बाय 33,20,000. ओके, सो आप प्रपोर्शन निकालेंगे. सो आंसर आएगा 0.6627. ओके, उसका प्रपोर्शन निकलेगा 0.0723. उसका प्रपोर्शन निकलेगा 0.26. ओके, सॉरी, 8,80,000 divided by 33,20,000. So proportion निकला 0.2651 और 50. Clear? Then 2,40,000 divided by 3320. 2,40,000 divided by 3320. तो उसका प्रपोर्शन आएगा 0.0723. क्लियर? और उसका प्रपोर्शन क्या निकलेगा? 22 डिवाइडेड बाय 33 lakhs, दैट इज 0.6627. उसका टोटल क्या बनेगा आपका? 1. देन कॉस्ट तो सेम ही रहेगा. सो डिबेंचर का कॉस्ट कितना आया था? 0.0903. प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट कितना आया? 0.1487 एंड इक्विटी शेयर का 0.70. मल्टीप्लाई करेंगे 0.2650 इंटू 0.0903, दैट इज 0.02393. Then 0.0723 into 0.1487, that is 0.01075. And multiply करेंगे तो आंसर आएगा that is 0.1127. So total of that 0.14738. Clear? So WACC as per market value is what? 0.14783 into 100. That is 14.738%. आया समझ में? सो ये आपका कैलकुलेशन हुआ 14 मार्क्स का सम और 13 मार्क्स का सम, जो एग्जाम में क्वेश्चन कंपलसरी आता है. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे. बाय, टेक केयर.